Yes, yes, Anshul. Your messages are visible to me. All right, guys, let's start. Okay, it's 7:34. We'll start at sharp 7:35. A lot of people are joining. I am good, Shaq. Thank you. I hope you're doing good also. Hmm. Okay, I'm good. Thank you, Suraj. Okay, let's start with today's class. A very good evening, guys. So let's start with today's class. The major topic that we will be covering is about how to create attractive resume. Very important topic, very major topic. Write down the topic name, how to create attractive resume. Topic name, how to create attractive resume. How to create attractive resume. Okay, now let's start with today's topic. But before starting with the topic, I just want three things from your end. First, please mention in the chat box how many minutes done yesterday for reading newspaper. Please mention in the chat box fast. 70 minutes, 55, 65, 25 minutes really bad, 15 minutes really bad. Rest all are having 60, 65, 1 hour, 45, 2 hours, 3 hours, good one, 2 hours, 59 minutes, 60 minutes, good one. Guys, please, it's my humble request. Less than 60 minutes is not going to help you in any of the way. Make sure 60 minutes reading newspaper, 60 minutes. And how many words are done till now? How many words? I told you 5 words. How many words done? 5, 7, 5, 9, 7, 5, 10, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 10, 2. ये 2 वाले नहीं चाहिए. Okay, good one. Thank you. And did you had a conversation with customer care, friends, mirror? Conversation going on? Good. Okay. Thank you, guys. These 3 things I'll be asking you on a daily basis. So make sure you are doing it. Make sure you are doing it without any hesitation, without any hurdle. This is very important and will not be able to make you understand English without this particular thing. This needs to be happen. This needs to happen on a daily basis. Okay? Chalo. Done then. Let's start with today's topic. Pehle, I'll be starting with some tips. Write down certain tips. You will be getting template from our end also. Template you will be able to see in your dashboard. But make sure the things that I'm telling you, the tips and tricks, make sure you are writing all these tips and tricks. These are very important. Okay. Now, first thing about your resume. Whenever you are creating any resume, make sure most of the time it should be of 1 page, not more than 1 page. 1 पेज का ही रखो मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत करो. वैसे तो ज्यादा भी होता है बट रखने का कोई फायदा नहीं है. हम लोग रिक्रूटर्स की बात बता रहा हूं, हम इतना देखते नहीं है. हमें 1 ही पेज का रिज्यूमे अच्छा लगता है. क्लियर? फर्स्ट थिंग, it should be of 1 page only. Second, write down crisp and clear. For experienced also, Anjali, I'm telling you, for both experienced and freshers, 1 page. Second thing, crisp and clear. Crisp and clear means to say avoid mistakes, grammatical mistakes. जब भी resume बना रहे हो, grammarly को use कर लेना. It's one of the good application wherein you can check your grammatical mistakes. Crisp and clear. Okay, ये 2 tips हैं. अब start करते हैं. लिखो content of resume. What all things needs to be mentioned in a resume and how.
Grammarly. Application name is Grammarly. Now understand it very carefully. Content of resume. What all things needs to be mentioned in resume. सीरीज क्या रहेगी, पैटर्न क्या रहेगा वो नहीं बता रहा हूं, क्या क्या लिखना है वो बता रहा हूं, पैटर्न बाद में बताऊंगा, पहले लिख लो कौन सी चीजें उसमें होनी ही चाहिए. फर्स्ट थिंग, योर पर्सनल डिटेल्स. योर पर्सनल डिटेल्स. अब आप बोलोगे सर पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या देना है, बता रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंट, पर्सनल डिटेल्स. पर्सनल डिटेल्स. पर्सनल डिटेल में सबसे पहले लिखो नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन आईडी. सबसे पहले फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन आईडी. लास्ट इज योर एड्रेस. I am repeating myself again. Contents that we need to write in resume. First content is your profile details. Your profile details. In profile details, what do you need to do? Mention what exactly you have to mention. First date of birth nahi likhna Muskan. First thing is about name, email ID, mobile number, LinkedIn ID, your address. 5 things in profile. जिसके पास LinkedIn ID नहीं है वो क्रिएट कर लो. विदाउट LinkedIn ID रेज्यूमे नहीं जाएगा. LinkedIn ID is very very important. Nowadays every recruiter is looking for LinkedIn IDs because they want to check your profile first before taking your interview. So make sure LinkedIn ID कैसे बनानी है, चलो इसके लिए अलग क्लास हो जाएगी, इस क्लास में मैं नहीं बताऊंगा इतनी जल्दी. ठीक है. मेल आईडी itself is not a LinkedIn ID. LinkedIn ID is प्लेटफॉर्म. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. बहुत बड़ी LinkedIn ID होती है, आपको छोटी सी लिखनी है. सिर्फ आपकी प्रोफाइल में जाके आपको बता दूंगा कहां से LinkedIn ID निकलती है. अभी सिर्फ चीजें लिख लो what exactly you need to do mention. ठीक है. These all things you need to do whenever you are doing your resume. URL skip कर सकते हैं, बिल्कुल skip कर सकते हैं. Okay. Now second thing, after profile what do you need to mention? First profile details. Second, introductory line. Introductory line. Second point, introductory line. Shruti, you can check how to create LinkedIn ID on YouTube also. Second point, introductory line. Everyone has to create 3 lines for your introduction. 3 lines. For example, I am a demonstrated person having exceptional knowledge of Excel, of sales, business development, objective type. Yes, this is objective type line. 3 lines of your introduction. This is very, very important. Second, introductory lines. 3 introductory lines. Third, education. Third, education. Third, education. एजुकेशन में हम बहुत बार गलती करते हैं अपनी परसेंटेज लिख के. Why to write percentage in resume? We are not at all concerned with it. We don't want your percentage. What we want? Degree name, कहां से डिग्री हुई, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था. That's it. एजुकेशन में 10th का मत डालो. 10th का कोई लिखने की जरूरत नहीं है. From 12th you can write it down. 12th, graduation, post graduation. If you are not post graduate, then graduation 12th. Introductory lines, Alka means to say introduction about you. Fancy lines about you, you can write it from Google. Diploma, you can write it down. परसेंटेज इसलिए नहीं लिखना क्योंकि अगर आपने 90% लिखा होगा तो आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो समझ लेंगे पहले आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो कई बार टफ सवाल पूछे जाते हैं. अगर आप बहुत कम लिख दोगे तो वैसे ही वो बोलेंगे ये डम सा लग रहा है.
मेंटालिटी बन जाती है परसेंटेज की। परसेंटेज से इंटरव्यूअर यूज्ड टू हैव अ डिफरेंट थॉट्स अबाउट यू, so we are not here to give you any thoughts, and we are not at all concerned with any percentage that you got. 10th, 12th, graduation, post graduation, need to mention, need to write ID, need to write year. 10th, 12th, 10th नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। 12th के साथ ईयर लिखो, कौन से ईयर में थी, ग्रेजुएशन कौन से ईयर में थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से ईयर में थी। ईयर, डिग्री नेम, इंस्टीट्यूट नेम, दैट्स इट। स्टार्ट एंड डेट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेंशन द ईयर नेम, मेंशन द ईयर नेम। आयुष, you can do that, no issues. Okay, in education mention, no need to mention any gaps. अगर गैप है फिर भी कुछ नहीं मेंशन करना। इंस्टीट्यूट एड्रेस नॉट मैंडेटरी। इन एजुकेशन ईयर, ईयर, डिग्री, इंस्टीट्यूट नेम, 3 चीजें चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए। एजुकेशन गैप है, कुछ नहीं है, हैंडल कैसे करना है मैं बता दूंगा। अभी सिर्फ रिज्यूमे बनाना सीखो, अभी पूछ तो नहीं रहा ना कोई आपसे, so don't worry about it, सिर्फ रिज्यूमे बनाते हैं अभी। Questions how to answer it I'll be telling. Currently pursuing, mention in your year, currently pursuing 3 things. Now 4th, experience, experience, जिसके पास नहीं है, जो फ्रेशर है, you can write down internship. ईयर एंडिंग नहीं लिखना, सिर्फ एक ईयर लिखना है बस। मान लो आपकी ग्रेजुएशन हुई 14-17, तो लिख दो 2014-17, दैट्स इट। अगर आपके 60%, 70%, 80% आ रहे हैं ना परसेंटेज, हम रिक्रूटर्स को कुछ नहीं मतलब है, मैं 90% वाले को भी रिजेक्ट कर देता था। अब वो बोलना ही नहीं आ रहा तो मैं परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है ना। आर परसेंटेज इज नॉट गिविंग एनी बेनिफिट टू अस इन रिज्यूमे, देन व्हाई टू राइट the things that not the things that are not giving any kind of benefit in resume, why to write? No need to write then. Yes, no, किसी को आपकी यूनिवर्सिटी से until वो IIM है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपका रिज्यूमे से पड़ता है कि फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए, जो मैं बता दूंगा। आपकी डिग्री कौन सी है, आपका ईयर कौन सा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेजर कंसर्न इज हाउ यू रोट इट। नाउ एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है बिल्कुल। एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इंटर्नशिप लिखेंगे, लाइक फ्रेशर्स। जिनके पास इंटर्नशिप भी नहीं है वो कुछ भी नहीं लिखेंगे। फेक एक्सपीरियंस कोई भी मत ऐड करना, आजकल बहुत क्रॉस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रही है, डोंट डू इट। ओपन यूनिवर्सिटी से कोई बात नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी लिख दो, जो भी यूनिवर्सिटी, इग्नू से किया है, किसी से भी किया है। प्रोजेक्ट किया है, बिल्कुल लिखो प्रोजेक्ट, वो बताऊंगा कहाँ लिखना है। प्रोजेक्ट कहाँ किया है कोई बात नहीं, उसका बता दूंगा। एमबीए परसुइंग लिख सकते हो, एमबीए परसुइंग ईयर लिख दो, उसका नाम लिख दो इंस्टीट्यूट का। इंटर्नशिप मींस आपने 1-2 महीने कहीं काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, बट नॉट एज अ पेड एम्प्लॉय, या पेड भी थे कम उस पे। एक्सपीरियंस कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, कितने टाइम वहां काम किया, कंपनी का नाम, कितने टाइम वहां पे काम किया, ये लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी फ्रॉम जून 2022 टिल अप्रैल 2023, प्रोफाइल का नाम लिख दो एज बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अगर स्कूल टीचर हो लिख दो स्कूल टीचर, स्कूल टीचर, स्कूल का नाम, ईयर, स्कूल टीचर तो आपने लिख ही दिया। एक्सेप्शनल नॉलेज कैन वी राइट? नो, एक्सपीरियंस में कोई एक्सेप्शनल नॉलेज नहीं लिखेगा। एक्सपीरियंस वही लिखेगा जिसके पास एक्चुअली में उसका सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसके अलावा आप नहीं लिखोगे। उसके बाद कोई कंसीडर नहीं करेगा आपको ओवर क्वालिफाइड, डोंट वरी। अब आपने एजुकेशन लिख दिया, एक्सपीरियंस लिख दिया, इंटर्नशिप में भी आपको कंपनी का नाम, कंपनी का नाम,
कंपनी के नाम के बाद आपको लिखना है आपने कौन से लेवल पे इंटर्नशिप करी, वो लिखना है और आगे करना है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप। अब लास्ट बात करते हैं अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स ये सबने लिखना है, सबने, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो चाहे आप फ्रेशर हो। एक्सपीरियंस्ड वाला अपनी अचीवमेंट लिखेगा लास्ट कंपनी से रिलेटेड, फ्रेशर लिखेगा related to any project if you did in your graduation, post graduation. If you haven't considered any project, then create something that is linked with the profile. For sales, आपने प्रोजेक्ट किया था, एक छोटा सा प्रपोजल बनाया था, बिजनेस डेवलपमेंट प्रपोजल। मार्केटिंग सेम प्रोजेक्ट। ऑपरेशंस के लिए यू डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। फॉर सिविल, फॉर ऑपरेशंस, फॉर आईटी यू नीड टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट। अचीवमेंट्स में प्रोजेक्ट के बारे में लिख दो। नेशनल सर्टिफिकेट है तो गुड टू गो, मेंशन करो अचीवमेंट में। 12th पास आउट अचीवमेंट में क्या लिखेंगे? यू मे बी अ मॉनिटर, यू यूज्ड टू हैंडल अ लॉट ऑफ पीपल इन द क्लास, मेंशन दैट। बिल्कुल, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कैन बी कंसीडर्ड इन अचीवमेंट। 3 ईयर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ नहीं लिखना, अचीवमेंट कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट कोई भी है आपके पास, ईआरपी का कोई भी सर्टिफिकेट है, अचीवमेंट में लिख दो। अचीवमेंट एनी सर्टिफिकेट, एनी सर्टिफिकेट। एनसीसी का है, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। ओके। एनएसएस का, ग्रेट लर्निंग का है, फिर भी लिख सकते हो, गुड वन। सर्टिफिकेशन गूगल से कोई भी सर्टिफिकेशन है आपको अचीवमेंट में लिखनी ही लिखनी है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, नो नीड टू राइट। कंप्यूटर का लिखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। रिसर्च प्रोजेक्ट है, मेंशन कर सकते हो, बिल्कुल मेंशन करो अचीवमेंट में। नाउ नेक्स्ट, स्किल्स, लास्ट वन, स्किल्स। अब ना 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स को रोक दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। हमारा स्किल्स और अचीवमेंट में डिफरेंस है। स्किल्स में आपको क्या लिखना है, अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप 5 कंपनियों में अप्लाई कर रहे हो, मान लो अलग अलग प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, आपका रिज्यूमे 5 कंपनी में सेम नहीं जाएगा। सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं, 5 में सेम रिज्यूमे भेज रहे हैं। वी हैव टू चेंज आवर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल दैट वी आर अप्लाइंग फॉर। जिस भी रिज्यूमे में आप सेल्स में अप्लाई कर रहे हो, रिज्यूमे बना हुआ ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हमारे पास एक एटीएस सिस्टम होता है, एक और हैक दे रहा हूं। हमारे पास एक सिस्टम होता है रिक्रूटर के पास, हमने गूगल से लिया हुआ है, खरीदा होता है सिस्टम। उसमें हम आपका रिज्यूमे डालते हैं। अगर हमें लगता है कि उसमें मैक्सिमम मैच आ रहे हैं, तब ही हम मैक्सिमम टाइम पे आगे लेके जाते हैं, नहीं तो वहीं रिजेक्ट कर देते हैं, जो आप बोल रहे थे सर हमें कॉल ही नहीं आ रहा। तो कुछ वर्ड्स होते हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो होने जरूरी है आपके रिज्यूमे में। आपके रिज्यूमे में वो वर्ड्स होने जरूरी है। वो कहाँ लिखेंगे? स्किल्स के अंडर लिखेंगे। मैं 2-3 प्रोफाइल का बता देता हूं, इससे रिलेट करके लिख लेना। सबसे पहले सेल्स के लिखो, कौन से वर्ड्स होने चाहिए। पहला वर्ड लिखो स्किल्स के अंडर, जो सेल्स में लिखोगे, सेल्स वाले वर्ड है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट। सेकेंड वर्ड लिखो फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग। फर्स्ट बिजनेस डेवलपमेंट, सेकेंड फोरकास्टिंग। Second is forecasting. Third we can write communication skills. Communication skills. Next, conviction skills. Conviction skills. Conviction skills. Okay. And then last you can write it down. Target oriented. टारगेट ओरिएंटेड। कन्विक्शन का मतलब होता है कन्विंसिंग पावर, मैं दूसरे बंदे को कितना कन्विंस कर पा रहा हूं, दैट मीन्स कन्विक्शन स्किल्स। दिस इज ऑल अबाउट सेल्स। अब आ जाते हैं एचआर पे। एचआर वाले लिखो,
Human resource development. Human resource development. Human resource development. ये HR वाले हैं. Payroll management. Payroll management. Payroll management. Next लिखो employee engagement. Employee engagement. Employee engagement. Employee engagement. Done. BPO वाले लिखो. BPO वाले लिखो. Yes, Aman. We have to edit it all the time. Skill section. BPO वाले लिखो. Business process. Business process. Don't worry, Priyanka बता रहा हूँ finance का भी. Business process. Shubham, the topic was how to create attractive resume. Business process. Kavita, I'll tell, don't worry. Business process. Second, customer engagement. Customer engagement. DP payroll management मतलब salary का part. Customer engagement. Solution oriented. Third लिखो, solution oriented. Solution oriented. Done. Finance के लिखो, financial management. Same Shruti. Financial management for accounts and finance. Financial management. Financial literacy. Financial management. Financial literacy. Money management. वैष्णवी बताता हूँ for IT jobs also. Wait. Done. Finance. Just 1 second, guys. Done, guys. So next one is financial literacy means about the money. All right. Then next point about IT. Mention in IT, information technology. About IT. Yes, BPO में conviction लिख सकते हो. About IT, information technology first. Second, artificial intelligence. Second, artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence and information technology. Third one, machine learning. Machine learning. Then languages. Then languages. And then अगर teaching का आप जानना चाहते हो, communication skills for teaching. Communication skills. Motivation. Communication skills. Motivation.
2 पॉइंट लिखो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। इफ यू आर अकाउंट्स टीचर, अकाउंट्स के रिलेटेड, साइंस टीचर, मैथ्स टीचर, जो भी है उसके रिलेटेड 2 पॉइंट्स लिखोगे आप। सो इसके लिए मैं आपको वर्ड्स भी दूंगा, डोंट वरी, अभी मैंने सिर्फ आइडिया सा दिया है। इसके लिए 2-3 क्लासेस और होनी है अभी रिज्यूमे के लिए, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। प्रेजेंटेशन स्किल्स यू कैन राइट। अब जो मैंने पॉइंट लिखवाया था ना स्किल्स, उसको ना पूरा हेडिंग क्या देना है, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। लिख लो अच्छे से, भूल जाओगे। हेडिंग है स्किल्स एंड इंटरेस्ट, स्किल्स एंड इंटरेस्ट, ओनली स्किल्स, कोई नहीं लिखेगा। जो मैंने वर्ड्स आपको बताए, अगर आपने वो वर्ड लिखे हुए तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा ये तो आपने बोला है वो आपकी स्किल्स है, आपको तो आता नहीं है। जो जो नहीं आता होगा बोलना मेरा इंटरेस्ट है, आई एम प्लानिंग टू लर्न इट, आई एम ईगरली वेटिंग टू लर्न इट। अब काउंटर हो गया, उसको खुद ही पता चल गया इसका इंटरेस्ट है, आता नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है ना, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। सिर्फ स्किल्स कोई भी नहीं लिखेगा, स्किल्स एंड इंटरेस्ट दोनों लिखने हैं, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट टिप्स में लिखो, प्रूफ रीड योर मेल, प्रूफ रीड योर रिज्यूमे प्रॉपरली, प्रूफ रीड योर रिज्यूमे प्रॉपरली। इसका मतलब अच्छे से सारे रिज्यूमे को पढ़ लेना है। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये कैसे लिखने हैं इसकी अलग क्लास होनी है। लिखना क्या है मैंने बता दिया, कैसे लिखना है इसके लिए आपको टेम्पलेट भी मिलेगा, एक और अलग क्लास भी होगी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लाइन अंजलि जानना चाहते हो, आप गूगल कर सकते हो या लिंक्डइन पे मेरी लाइंस लिखी हुई है वो उठा लो, टेम्पलेट आपको कल तक मिल जाएगा। लिंक्डइन आईडी सबकी क्रिएट हो जानी चाहिए, लिंक्डइन आईडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं हॉबीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्किल्स इंटरेस्ट में आ गया वो। नाउ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, आप लोग सारे मेरे साथ रिपीट करोगे। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट में मैंने क्या बताया है, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट पॉइंट इन कंटेंट, कंटेंट का रिज्यूमे में सबसे पहले मैंने क्या बताया, यस, प्रोफाइल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल। जो लेट आए हैं प्लीज राइट इट डाउन, पर्सनल डिटेल पहला पॉइंट बताया मैंने। पर्सनल डिटेल में सारे एक बार मेरे को मेंशन करोगे क्या क्या बताया मैंने, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन आईडी, एड्रेस, ये 5 चीजें मैंने बताई हैं। दीज 5 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर होनी चाहिए ये। कैसे लिखना है बात की बात है, लिखना है ये पता होना चाहिए। सेकंड, सेकंड क्या करना है हमें, इंट्रोडक्टरी लाइन। इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होता है, इंट्रोडक्टरी लाइन का मतलब करियर ऑब्जेक्टिव टाइप लाइन। I am a demonstrated, exceptional, knowledgeable person and planning to grow with your company. ऐसी कोई अच्छी सी फैंसी सी लाइन हमने लिख देनी है वहां पे। That depends from person to person. वो आप अपने लेवल पे बनाओगे, वो लाइन को लिखोगे ऊपर। थर्ड, थर्ड पॉइंट एवरीवन, एजुकेशन। एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन मैंने बता दिया, नो नीड टू मेंशन परसेंटेज, परसेंटेज मेंशन नहीं करनी है। तो मेंशन क्या करना है, पासिंग ईयर, डिग्री नेम, डिग्री कॉलेज, पासिंग ईयर, डिग्री नेम, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम या आपके कॉलेज का नाम। ओके, दिस इज थर्ड पॉइंट, एजुकेशन। फोर्थ पॉइंट एवरीवन, एक्सपीरियंस हाइफन इंटर्नशिप, कुछ भी हो सकता है, एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप। ओके, एक्सपीरियंस कैसे मैंने बता दिया, फर्स्ट ईयर लिखोगे कंपनी का नाम या ईयर कुछ भी, ईयर, कंपनी का नाम, प्रोफाइल, ऐसे ही लिखने, इससे ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है, वो फालतू की चीजें हैं। वी आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दिस फ्रॉम यू पीपल। ओके, देन आफ्टर एक्सपीरियंस इंटर्नशिप लिखो, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इंटर्नशिप लिखो। देन अचीवमेंट, थैंक यू एवरीवन। द नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स एक्सपीरियंस वाले पुरानी लिखो, अगर सेल्स के लिए अप्लाई करो तो बताओ लास्ट टारगेट बहुत अच्छे करते थे आप, यू आर अवॉर्डेड विद दिस, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन में आपका नाम आता था, बहुत बार नाम आया है, यू कैन राइट एनीथिंग अबाउट इट अचीवमेंट्स में।
If you are a fresher, about your graduation achievements, about anything related to your projects that you did in your graduation, post graduation, we have to write it down. ओके, इन अचीवमेंट्स आप 12th पास आउट हो, 12th में अगर आप मॉनिटर थे, कोई प्रोजेक्ट किया है, वो सारी चीजें आप लिखोगे उसमें, ठीक है। देन हमें लिखना है आफ्टर अचीवमेंट्स स्किल्स एंड इंटरेस्ट, दोनों लिखने हैं। सिर्फ स्किल्स मत लिखना, सिर्फ इंटरेस्ट मत लिखना, सिर्फ स्किल्स मत लिखना, सिर्फ इंटरेस्ट मत लिखना, दोनों लिखने हैं, स्किल्स भी और इंटरेस्ट भी। बोथ द थिंग्स वी नीड टू मेंशन, skills also, interest also. Okay, under skills what we need to write, मैंने बता दिया। सेल्स वाले अलग लिखेंगे, ऑपरेशन वाले अलग, एचआर वाले अलग। ये अभी बताना है मैंने आपको, ये मैंने अभी आपको बताना है। ये अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताए हैं जो वर्ड्स, अभी इसके लिए स्पेशल क्लास होनी है, डोंट वरी अबाउट इट। आज की क्लास आपकी शेड्यूल्ड एक अलग रिज्यूमे स्पेशलिस्ट के साथ भी हमने रखवाई है, वो भी होगी। प्रोफाइल फोटो ऐड मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, प्रोफाइल फोटो नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रूफ रीड योर रिज्यूमे प्रॉपरली, दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्रूफ रीड योर रिज्यूमे, प्रूफ रीड योर रिज्यूमे मतलब अच्छे से पढ़ लो रिज्यूमे को, अच्छे से रिज्यूमे को पढ़ लेना है, बिल्कुल ध्यान दे लेना है रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेना है, तभी हमने आगे उसको भेजना है। प्रूफ रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर रिज्यूमे। ये हमें सारे कंटेंट डालने हैं। आपको कल एक टेम्पलेट मिल जाएगा रिज्यूमे का, आपकी एक अलग क्लास भी होगी स्पेशलिस्ट से रिज्यूमे के रिलेटेड, सेकेंड थिंग। थर्ड, एक और क्लास मेरी दोबारा होगी जिसमें मैं वर्ड्स बताऊंगा, जो टेक्निकल वर्ड्स है। आपकी डैशबोर्ड पे ही आपको टेम्पलेट मिलेगा। टेम्पलेट अभी नहीं, हमने डाला ही नहीं है, तो मिलेगा कैसे, कल मिलेगा। इंटर्नशिप लिख रहे हो तो वही इंटर्नशिप डालो जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एनी रोल, अगर लिखा हुआ है तो फ्रेशर्स कैन अप्लाई। डोंट वरी राजेश, मिल जाएंगी आपको स्किल्स। बस मेरे को एक चीज बता दो, जितने कंटेंट मैंने बताए, आर यू ऑल क्लियर विद द कंटेंट? कंटेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंटेंट सबको समझ आ गया ना? जितना कंटेंट मैंने बताया क्लियर है ना सबको? वो कंटेंट होना बहुत जरूरी है, इसमें से कुछ स्किप मत करना और अननेसेसरी चीजें मत डालना लेंदी करने के लिए हमें, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर, क्लियर। थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बहुत शॉर्ट क्लास थी आज हमारी, ठीक है। अब हाउस इज ओपन फॉर क्वेरीज, अगले 4 से 5 मिनट में आपकी क्वेरीज ले रहा हूं, जो जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। हाउ टू एंड द रिज्यूमे, लास्ट स्किल्स एंड इंटरेस्ट, दैट्स इट। इंट्रोडक्टरी लाइन में मनविंद्रा आपको जानना है तो डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल, आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चले जाओ, वहां पे आपको लाइंस मिलेंगी, वही लाइन लिख लेना। यस ममता टेल मी, डेटा एंट्री के लिए आप लिख सकते हो बीपीओ वाली लाइंस। हॉबीज एल्गोरिदम कुछ नहीं लिखना है, हॉबीज हमने स्किल्स एंड इंटरेस्ट में कवर कर दी। ईमेल नहीं आया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा ईमेल, मिल जाएगा आप लोग को ईमेल। एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ दो कॉलम, नहीं डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर हो कोई बात नहीं, नहीं डालेंगे, एक्सपीरियंस स्किल्स इंटरेस्ट में डाल दो। मेरी लिंक्डइन आईडी क्या है, रोहित कपूर। अगर नहीं मिल रही, रोहित कपूर फाउंडर कॉमर्स विद्या लिख देना, मिल जाएगी। अभी बता के हटाऊं, रोहित कपूर। प्लीज एक ही सुन लिया करो अच्छे से, प्लीज गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिस्ट वाले मेरे पास वो पूछ रहे हैं कि सर इसके कीवर्ड्स बता दो, मिलेंगे आपको कीवर्ड्स, डोंट वरी, आपको आपके डैशबोर्ड में भी मिलेंगे कीवर्ड्स। फ्रेशर कैन अप्लाई फॉर एनी रोल, अगर कंपनी हायर कर रही है। फोटो अटैच करना कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी विश है वो। Skills, I've already told you how what all skills are required. Email content not received, no, don't worry, you'll be getting it. Yes, Mamta, I'm not able to see your question. ट्रैकिंग सिस्टम का स्कोर कर सकते हैं गूगल में कोई, फिर नहीं नहीं, नो नॉट पॉसिबल।
कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो लो अच्छे से, विदाउट कंप्यूटर नॉलेज हम कैसे करेंगे ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन जॉब कैसे करेंगे? नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड कैन अप्लाई एचआर रोल, ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई। अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए जाना है, डोंट वरी, हो जाएगा। रिज्यूमे बना लो पहले अच्छे से। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अचीवमेंट भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर सपोर्ट जॉब्स के लिए स्किल्स क्या होगा, मैंने अभी जो बताए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इंटर्नशिप डालो, फ्रेशर अगर इंटर्नशिप डालो, अगर की हुई आपने इंटर्नशिप कोई भी फाइनेंस में, एचआर में, मार्केटिंग में, सेल्स में। ऑनलाइन बिजनेस बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हो। प्राइज एंड विनर बिल्कुल कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप है, बिल्कुल डालो इसको, तो बहुत अच्छी है, यू कैन राइट इट डाउन। आर्टिस्ट से रिलेटेड नो नीड टू राइट बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस। कॉलेज गैप डोंट वरी, राइट इट डाउन। यूट्यूबर नो नीड टू राइट। होम ट्यूटर नो नीड टू राइट। एक्सपीरियंस कम है तो कोई बात नहीं है, किसी के पास 1 महीने का 2 महीने का एक्सपीरियंस है, नो नीड टू राइट। डोंट स्पॉइल योर रिज्यूमे। 1-2 महीने का एक्सपीरियंस नहीं होता, मिनिमम 3-6 महीने का एक्सपीरियंस डालते हैं, उससे ऊपर तो कितना मर्जी डाल दो। 3 या 6 महीने से कम हम एक्सपीरियंस नहीं डालते अपने रिज्यूमे में। पेंटिंग अचीवमेंट यू कैन राइट इट डाउन। ऑनलाइन क्लासेस एक्सपीरियंस यू कैन राइट इट डाउन। internship you can write it down, but 6 month that, yes Ritu, you can mention. You have skill, no certificate, no need to write. Freelancer you can write it down. Singing related, no need to write, these are hobbies. Experience, okay, you can write it down for accounting also. Yes Priyanka, your messages are visible. Experience but no certificate, no need to write. Civil related project you can write it down. Skills for accounting, that you can write it down. Online business in skills and interest. Junior accountant internship you can write it down. You have skill but no certificate, just mention in the skills, no need to write it in the experience section. No, Sudipta, no need to write it if it was easy competition. Tally, ERP, yes, you can write it down. Yes, you can write it down. Yes, you can write it, Shweta. Evaluation experience, no need to write it down. Test book of freelancing, yes, you can write it down. Certification अगर है, then you can write it down in the internship. Certificates नहीं है, skills है, write it down in the skills and interest. India Mart freelancer, yes, you can write it down. Okay, guys, I hope I've answered maximum questions. We got the topic of how to create attractive resume, and we are done with the topic. We'll again have a class, and you'll have one more class with the resume specialist also. Okay, thank you, everyone. Thank you for your time. We had a great time. Last mantra of the class, please mention in the chat box, everyone. Last mantra of the class, I am eagerly waiting. Last month, thank you everyone. We are the best. To remove the nervousness, to remove the fumbleness, everything. The mantra is I am the best. We are the best. Thank you everyone. Thank you everyone. Have a great day ahead. Thank you. Have a nice day.